So we see the Gomori's cutting plane method in this lecture. So this method is a technique to solve integer linear programming problems The strategy of this method is basically this lies in the techniques called as cutting plane methods, out of which it was given by Gomori. So the name Gomori's cutting plane method. So the technique is it starts from the continuous optima of the LPP. Then it introduces special cuts in your problem, and these cuts are nothing but linear inequalities So it introduces linear inequalities in the solution space, thereby moving towards an integer optima if the problem is feasible. So this is the whole strategy. First, the first step is to start from the normal LPP that you have and arrive at the optimal solution. Then it forces the solution such that you introduce special cuts or constraints that eventually chop off the areas that are not required, because in those areas you are bound to get non-integer solutions only. तो सिर्फ उन cuts से जो एरिया बचता है उस एरिया पे फोकस करते हैं, और धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम को ये मेथड बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर कट्स इन योर प्रॉब्लम इट स्टेयर्स योर प्रॉब्लम टुवर्ड्स एन इंटीजर ऑप्टिमा इफ द प्रॉब्लम इज फीजिबल. अगर आंसर आना है इंटीजर तो ले आएगा ये मेथड. अगर प्रॉब्लम ही इनफीजिबल है तो ये मेथड बाद में पता चल जाएगा कि कट्स लगाने से हुआ क्या, प्रॉब्लम इनफीजिबल बन गई. सो लेट अस सी दिस method by the help of an example. Let us say the problem is maximize z equals to 7x1 plus 10x2. The first constraint is minus x1 plus 3x2 is less than equal to 6. The next is 7x1 plus x2 is less than equal to 35. The normal constraints we have are the non-negativity constraints, ये तो रहती हैं. Now the special constraint is that xi also now have to be integers for all I. So this part of the problem makes this problem an integer linear programming problem. And without this, that means if you have only this, it's a normal LPP which you solve using the simplex method. So the first step that Gomori's cutting plane method requires is to solve your problem with these constraints only, without this. इसके बिना आप solve करो. So let us solve and see how the method proceeds. So since we only need the optimum table, that means you first have to arrive at the optima. So I'm making the optimal table only, and from that I'll move ahead. So this is the optimal table of this problem. At the optima, we see that the value of x2 is 7 by 2 and the value of x1 is 9 by 2. And the objective value, the z value, is 133 by 2, and this is the optimal table because the zj minus cj's are all non-negative. This is non-negative. So all the values in the zj minus cj row are non-negative. So this is the optima. Now introduce this constraint
that now what you want is at the optima कि x1 should be integer, x2 also should be an integer. But if you enforce this constraint, now this optima not remains feasible because it is violating this constraint. तो अब यहाँ पे गोमरीज कटिंग प्लेन मेथड से वी विल स्टेयर आवर प्रॉब्लम टुवर्ड्स ऐसा बन जाए कि x2 भी इंटीजर बन जाए अगर आना होगा और x1 भी इंटीजर आ जाएगा अगर ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली फीजिबल है तो. To make this Gomori's cutting plane method work, there is a very important concept that will be used. That is the concept of writing every number, every real number, as the sum of the greatest integer of x plus the positive fractional part of x. So this is the greatest integer less than or equal to x. This is the fractional part of x, and that too the positive fractional part. If this x is a non-integer, so this x fractional part of x will always be a positive fractional part. For example, if I have the number 1.5, so the 1.5 का जो breakup है वो क्या है? Greatest integer of 1.5 plus the fractional part of 1.5. 1.5 का greatest integer is 1. This is 1.5 plus the fractional part. So this is nothing but 1 plus 0.5. That gives you 1.5. तो हर नंबर रियल नंबर का एक ब्रेकअप है in terms of the integer part. In addition to that, the fractional part it contains. For example, if you have the number 1, 1 is itself an integer, तो उसका सिर्फ एक integer ही part होगा, उसका fractional part 0 होगा. So more you can write this as greater than equal to also. Now the main thing is when you have negative values. So what is the breakup of minus 1.9? So going by the formula we have the greatest integer of minus 1.9 plus the fractional part of minus 1.9. So this is minus 1.9. Now the greatest integer of minus 1.9 is minus 2. It is minus 2 plus the fractional part of minus 1.9. So if you want to know what is the fractional part of minus 1.9, इसको यहीं रख के बाकी को आप वहां भेज दो, आपको पता चल जाएगा कि fractional part of minus 1.9 कितना होता है. तो कितना हुआ ये 2 उधर गया पॉजिटिव, minus 1.9, that is the fractional part of minus 1.9, that is 0.1. So fractional part of minus 1.9 is not minus 0.9. So that is the main thing to notice. It is 0.1. 0.1 is the fractional part of a negative minus 1.9. In the same way, the last example, let's say if somebody wants to ask what is the fractional part of minus 2.7, the answer is not minus 0.7, it is plus 0.3. How do you write this as? Minus 3 is the greatest integer, add 0.3. So everywhere what have we written? The fractional part is positive, either 0, it is positive, it is positive. So this is a fact that will be used whenever we make cuts. Fractional part positive रखना है आपको. So इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से. The formula that we'll be using is this. This is the formula that will be used. Now coming back to the method. गोमरीज कटिंग प्लेन मेथड क्या बोलेगा कि दोनों के दोनों इंटीजर नहीं है, तो आप एक काम करो, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लो जिसको आप पहले बनाओगे इंटीजर. अल्टीमेटली अगर प्रॉब्लम का आंसर दोनों x1 और x2 एट दी ऑप्टिमा इंटीजर बनने होंगे तो वो एक एक करके बन जाएंगे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसको चूज करते हो. बट जस्ट टू मेक द एल्गोरिथम प्रोसीड यू हैव टू चूज अ वेरिएबल एंड देन मूव अहेड. तो ह्यूरिस्टिक क्या बोलता है? जिस भी वेरिएबल का फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा है आप उसको चूज करो, उस पर फोकस करो और उसे बनाओ पहले इंटीजर. जैसे इस केस में कितना नंबर है? द नंबर इज 3.5
एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5 ओनली। अगले का नंबर है 4.5 और उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना है 0.5। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट में दोनों में इक्वली वैल्यूज हैं। तो नाउ देयर इज अ टाई कि किसको पहले बनाया जाए। सो इट इज अप टू यू, तुम्हारा डिस्क्रिशन है, किसी को भी पहले चूज कर लो कि आप पहले इसको बनाओगे इंटीजर। यू कुड चूज x2 और यू कुड चूज x1। तो लेट अस से वी चूज द रो फॉर x2, ये वाली जो रो है इस रो को चूज करते हैं एंड इस रो की हेल्प से वी विल बी मेकिंग अ स्पेशल कट और उसी कट को बोलेंगे गोमोरीज कट। तो क्या करना होता है, क्योंकि हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं ये मेथड, तो हम कट बनाने के लिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। हर बार नहीं करेंगे बट पहली बार कर रहे हैं, तो लेट अस डू एन एनालिसिस। व्हाट इज द एनालिसिस? सी द फर्स्ट रो जिसको आपने बोला है कि उसकी हेल्प से आप बनाओगे कट। तो जिस रो को आप चूज करते हो, इस रो को चूज करो। इस रो को बोलते हैं सोर्स रो। सो दिस रो इज कॉल्ड एज अ सोर्स रो, जिसको आप चूज करोगे। सो लेट अस चूज द फर्स्ट रो एज द सोर्स रो। फर्स्ट रो को लिखो एज एन इक्वेशन। अभी टेबल में लिखा हुआ है राइट इट एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो कैसे लिखोगे? x2 प्लस 7/22 इंटू s1 प्लस 1/22 इंटू s2। राइट हैंड साइड पे है 7/2। द नेक्स्ट स्टेप that you do in this method is to segregate every integer on the left and every non-integer, that means a fraction, on the right. कैसे ब्रेक करते हो? x2 is should be an integer every time, तो x2 is an integer क्योंकि that is what you need। प्लस जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उन सबको तोड़ के लिखना है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। 7/22 किसकी प्लेस पे आ गया? x की जगह। 7/22 का ब्रेकअप देना है इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। तो कैसे दिया? 7/22 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0 प्लस 7/22 इंटू s1। अगला नंबर कितना है? 1/22 का ब्रेकअप देना है इन दो सम के टर्म में। सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/22 इज 0 प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस 1/22 इज प्लस 1/22 इंटू s2। 7/2 का ब्रेकअप क्या है? 3.5 आ रहा है। 3.5 का ब्रेकअप क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर वुड बी 3, 3 प्लस हाफ। सो 3 प्लस हाफ। सो वन थिंग टू नोटिस इज फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही लिया है, देखो। नेक्स्ट व्हाट यू डू, ब्रिंग एवरी इंटीजर टर्म ऑन वन साइड एंड एवरी नॉन इंटीजर ऑन द अदर। तो x2 इज एन इंटीजर, इसको यहीं पे रख दिया, प्लस 0 टाइम्स s1 इज एन इंटीजर, प्लस 0 टाइम्स s2। उस 3 को जो राइट हैंड साइड पे इंटीजर है उसको लेफ्ट पे लेके चले आए, -3 इज इक्वल टू सेंड एवरीथिंग एल्स ऑन द राइट। तो राइट में पहले से 0.5 है, 0.5 माइनस 7/22 इंटू s1 माइनस 1/22 इंटू s2। तो ये दो टर्म्स तो खत्म ही है क्योंकि ये 0 है, तो ये तो खत्म ही कर दिए। सो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। नाउ वी डू द एनालिसिस। x2 इज एन इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर क्योंकि हम लेके ही सब कुछ आए हैं लेफ्ट में इंटीजर्स को। सो दिस एंटायर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एन इंटीजर क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। दिस इज एन इंटीजर विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू भी क्योंकि इसके इक्वल है तो फिर ये भी होगी इंटीजर, क्योंकि कम से कम कैरेक्टरिस्टिक तो नंबर्स का सेम ही होगा। ये इंटीजर और ये वाला इंटीजर ना हो तो ये सेम नहीं हो सकते। तो इस इंप्लाइज एक एनालिसिस से ये पता चलता है कि ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ऑल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट वी सी दी वैल्यूज ऑफ द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है राइट में 0.5 माइनस समथिंग एंड माइनस समथिंग। और सिंप्लेक्स में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो स्लैक और नॉन नेगेटिव, यानी कि ये भी नॉन नेगेटिव और ये भी, दोनों ही वैल्यू नॉन नेगेटिव है। आप कर क्या रहे हो? हाफ में से कुछ माइनस कर देते हो। इसका मतलब है कि ओवरऑल इस चीज का वैल्यू कैन नेवर एक्सीड 0.5 क्योंकि 0.5 में से कुछ घट ही रहा है हर बार। तो एक एनालिसिस से अभी इंटरमीडिएट से ये पता चला कि ये वैल्यू इंटीजर भी है और इसका वैल्यू एट मोस्ट 0.5 है। अब आता है इन्फरेंस कि ऐसा कौन सा इंटीजर है
जिसका मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है, द इंटीजर इज 0. द इंटीजर दैट इज लेस देन अ फ्रैक्शन. सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो फ्रैक्शन से जस्ट छोटा है? इट इज 0. दैट मीन्स एनालिसिस से ये पता चला कि ये 0.5 भी कभी नहीं हो सकता. अगर ये इंटीजर है तो ये कितना हो सकता है? ये 0 हो सकता है एट मैक्स. सो सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट आर फर्स्ट गोमरी कट. क्या बना कट? 0.5 को उधर भेज दो लेस देन इक्वल टू के, तो बचा -7/22 इंटू S1 -1/22 इंटू S2 is less than equal to minus half. 0.5 is half only. 0.5 उधर चला गया तो minus. So this is your Gomori's cut. And this is the fractional cut. ये जो special cut है, इसको बोलते क्या है specially? This is a fractional cut. Fractional cut क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी आपके ये values हैं coefficients के इस cut में, they are all fractions. So this is the Gomori's cut that you get. और इसी को हम अपने सिंप्लेक्स टेबल में डालेंगे. कैसे डालेंगे? नाउ ऑब्जर्व दिस S1 एंड S2 इन योर करंट टेबल. क्योंकि बेसिक कॉलम में नहीं लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो नॉन बेसिक है बाहर. और नॉन बेसिक का वैल्यू कितना होता है? S1 का वैल्यू भी 0 होगा और S2 का वैल्यू भी 0 होगा. यानी कि S2 एंड S1 बोथ आर 0 करेंटली. तो पुट 0 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे. डिफरेंस इज 0 एंड यू आर सेइंग कि 0 इज लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ. इज दिस पॉसिबल? दैट मीन्स देयर इज अ वायलेशन. करंट ऑप्टिमा जो भी आ रखा है ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता. दैट मीन्स दिस कंस्ट्रेंट इज गेटिंग वायलेटेड एट द ऑप्टिमा. दैट मीन्स देयर इज अ वायलेशन एंड देयर इज एन इनफीजिबिलिटी. तो करना क्या होगा? इस इक्वेशन को अपनी टेबल में डालना होगा और डुअल सिंप्लेक्स को अप्लाई करना होगा. तो हाउ डू यू अप्लाई? -7/22 लिखा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में. -7/22 S1 -1/22 S2. एक स्लैक ऐड करा कौन सा? S3, क्योंकि S1 S2 पहले से है, is equal to minus half. So take this equation, put it in your table. So that is why I have left a row and I have left a column. एक ये रो आएगी किसकी? S3 की. एक कॉलम आएगा S3 का. So write the coefficient. S3 is the new basic variable as we do in dual simplex and addition of a constraint, जो हमने किया था sensitivity में. x1 नहीं है उस constraint में, लास्ट वाली जो अभी ऐड करी. x2 भी नहीं है. S1 का कोएफिशिएंट कितना है? -7/22. S2 का कोएफिशिएंट कितना है? -1/22. S3 खुद 1 कोएफिशिएंट के साथ आएगा राइट हैंड साइड पे, -1/2. S3 का कॉलम आ गया. S3 पहली इक्वेशन में नहीं है, दूसरी में भी नहीं है. S3 का कोएफिशिएंट 0 है तो उसका C भी कॉलम में एंट्री 0 और उसका Zj - Cj भी 0 क्योंकि वो बेसिक वेरिएबल है. So now we have added this constraint and we see there is a negative value on the right hand side. That implies the current solution is infeasible. It is optimal though, but it is infeasible. So what you apply? You apply the dual simplex method. तो क्या करना है? Dual simplex को apply करना है. I'm just writing the dual simplex, not showing the intermediate calculations. So as we can see, एक बार dual simplex लगाने से ये variable जाएगा और ये वाला आएगा. And the subsequent table would be this with S3 left and S1 came in place of S3. And the values in the current table we have x2 integer बन चुका है, but x1 is still not an integer. But there is an S1 also which is not an integer. So now what you choose? You have to choose a specific row called as the source row again. इस बार x2 को नहीं देखना क्योंकि वो बन चुका है integer. Out of the second row और द थर्ड रो किसी को भी आप चूज कर सकते हो एज द सोर्स रो. बट क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये दोनों वैल्यूज में कि फ्रैक्शनल पार्ट में टाई आएगा, तो वंस अगेन यू कैन चूज एनी रो. बट सिंस x1 इज अ डिसीजन वेरिएबल जिसको बनाना तो है ही पहले इंटीजर, so choose the row for x1. You can also choose the row for s1 also as a source row, but for the moment I'm choosing the x1 row as my source row to introduce one more Gomori cut. How to choose that? Row क्या है x1 की? x1 plus 1/7. What is this variable? S2 plus minus 1/7 S3. On the right hand side I have
32/7. Once again do that same thing. x1 plus 1/7 का breakup क्या है? 0 plus 1/7. Now comes the interesting part. Plus minus 1/7 का क्या breakup है? minus 1/7 का greatest integer is -1. -1 plus the fractional part, that is the positive fractional part, is 6/7. So do not write it as 0 minus 1/7. This is incorrect. You have to use the positive fraction part, going by the definition that we have here. Plus S3 is 32/7 का breakup क्या है? 4 plus 4/7. 4 is the greatest integer, fractional part is 4/7. तो जब भी positive number है तो कोई इसमें problem नहीं आ रही. Only when you have a negative fraction, negative number, then only you need to carefully see. So bring every integer on the left. So this is for S2. So x1 minus S3 minus 4 is 4/7 minus 1/7 S2 minus 6/7 S3. So this is an integer. So this should also be an integer less than equal to 4/7. But going by the analysis कि ये एक integer है less than 4/7. So that would give you less than equal to 0 once again. So the cut becomes minus 1/7 S2 minus 6/7 S3 लेस देन इक्वल टू 0 था यहाँ पे, अगर 4/7 वहां जाएगा तो -4/7. So this is the new cut that we have, the Gomori's cut, the second cut. Now use this cut in your table. कैसे जोड़ेगा ये? एक नया वेरिएबल आएगा, we have a new row left, एक कॉलम आएगा. The new row will be having the variable S4 as a basic variable, क्योंकि you would introduce a slack in this row, that would be S4. x1 नहीं है उसमें, x2 नहीं है, देख लेते हैं एक बार. दिस कॉलम इज फॉर S1 ओनली. तो S1 है, S1 नहीं है, तो S1 नहीं है. S2 है, S2 के कॉलम में कितना आएगा? -1/7. S3 के कॉलम में आएगा -6/7 और खुद के कॉलम में आएगा 1. राइट हैंड साइड पे आएगा -4/7. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और बेसिक वेरिएबल के लेफ्ट में यहाँ पे 0. S1 स्लैक है तो 0, इसका 7. Once again we have a negative, so apply dual simplex again. You already have optimality, so this would leave. So I'm simply writing the final table. So this is the final table, and in the final table we see every variable is having an integer value. x2 is 3, this is the optima value. x1 is 4, s1 is 1, s2 is 4, and the z value is 58. zj minus cj पहले से ही optimal थे, feasibility आ गई. This is the optima. So this is the Gomori's cutting plane method. Once you identify the cut, then it's only dual simplex. So one thing to note is that at the optima table, every basic variable should be an integer. यानी कि अगर x1 x2 integer आ गए होते और s1 by chance was half, then you will not say कि this is the optima table, because s1 also should be an integer, s2 also should be an integer. Only x1 x2 being integers is not the solution to the problem, as we have done in the Gomori's cutting plane method. Every basic variable should be an integer. नॉन बेसिक को इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि नॉन बेसिक तो बाहर है टेबल की, उनका वैल्यू 0 है, एंड 0 इज ऑलरेडी एन इंटीजर, तो वो तो ऑटोमेटिकली इंटीजर्स पहले से ही हैं. इनको बनाना है आपको इंटीजर. सो आई विल जस्ट take an example and just make the cuts, because after that it is dual simplex. Let's say for instance, and let's say the pattern क्या है कट का.
इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमने x2 की रो को डेजिग्नेट किया था टू मेक द कट। अगर x2 की रो में ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो जो आप कट बनाओगे उसमें वो सिंपली नेगेटिव के साथ आ जाएगा। +1/22 था, नेगेटिव के साथ आ गया वही फ्रैक्शन। 7/2 का जो फ्रैक्शन पार्ट था वो कितना था? 0.5, वही नेगेटिव के साथ आ गया -12 बन के। अब आते हैं अगले वाले पे। अगले वाले के लिए हमने कौन सा कट लिया था? हमने ये वाली रो चुनी थी, दिस रो। इसको माना था सोर्स रो। और देखो इस रो की हेल्प से जो कट बना वो क्या कट बना? ये लास्ट वाला। कैसे बना? 1/7 पॉजिटिव फ्रैक्शन था, यही -1/7 बन के चला आया। -1/7 के साथ क्या हुआ? -1/7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 6/7। देखो 6/7 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और यही 6/7 माइनस बन के चला आया। 32/7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 4/7 है, वही माइनस बन के चला आया। सो दैट इज अ पैटर्न। लेट्स सी कैसे बनाएंगे इसी पैटर्न को देख के अगला। So this is also asked to solve using Gomori's cutting plane method. We have the optimal table. ये optimal table है because Zj minus Cj's are all non-negative for all j. And right hand side पे current optima पे क्या है? x1 का वैल्यू 1/3 है. Surplus in the second constraint is an integer. x3 is 13/3. So these two variables are not satisfying this constraint. कि variables integers होंगे. Now we need to make a Gomori cut. So there are two options. पहला तो है कि आप x1 का रो देखो और इससे बनाओ एक कट। नेक्स्ट है एक रो ये है, इससे बनाओ। तो लेट अस से आई चूज द फर्स्ट रो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1। तो कट क्या बनेगा? एक नया वेरिएबल आएगा s4, उसका एक कॉलम और उसकी एक रो। दिस यहाँ पे 1, Zj माइनस Cj 0 0 0 0। अब मेन उस पे आते हैं कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। तो अगर हम इससे बनाते हैं, इससे और इससे, तो ये एक इंटीजर है, तो इंटीजर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता कट में, 0। ये -1/3 है, तो -1/3 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक फ्रैक्शनल पार्ट निकालना पड़ेगा जो पॉजिटिव है, और वो होगा क्या? +2/3, बिकॉज -1/3 इज व्हाट? -1 + 2/3। तो दिस इज द पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट। इसका नेगेटिव करके यहाँ पे -2/3। नेक्स्ट ये इंटीजर, इंटीजर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता कट में। अब आते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये पहले से ही पॉजिटिव 1/3 है, तो इसी का नेगेटिव लिख देना है, -1/3। यहाँ पे 0, 0 का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं क्योंकि 0 इज एन इंटीजर। कट में कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ फ्रैक्शन का ही आता है। -2/3 ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? पहले -2/3 इज फर्स्ट -1 + 1/3, तो ये रहा इसका पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो 1/3 को लाएंगे और नेगेटिव के साथ यहाँ पे लिख देंगे, -1/3। राइट हैंड साइड पे क्या है? 1/3 पॉजिटिव ही है, लाना है, और -1/3। सो दिस इज द कट फॉर द x1 रो। सो दिस इज द कट, सो दिस इज द कट। ये एक रो एक्स्ट्रा आई और एक कॉलम ये एक्स्ट्रा आया। नाउ सिंस वी हैव अ नेगेटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड, तो फिर ये वेरिएबल लीव करेगा, दिस वुड लीव। नाउ कैलकुलेट द एंटरिंग वेरिएबल, ये थीटा j। सो फर्स्ट दिस इज द लीविंग रो एंड दिस इज द Zj माइनस Cj। रेशियो लेना है एज डुअल सिंप्लेक्स में। सो दिस वुड बी 15/2 का मॉड, दैट इज 7.5। मॉड लेने के बाद 7.5, this would be 3, this will not be taken, this would be 6, this would not be taken। तो कौन सा मिनिमम है? दिस इज द मिनिमम, सो दिस वुड एंटर, दिस बीइंग द पिवट वैल्यू। मैं निकाल देता हूँ ये x1 s2 x3, बट s4 is leaving and s1 is entering। so s1 is entering, pivot को बनाना है 1, so multiply throughout by -3। तो this is 0, this is 2, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is -3, एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 1। तो ये पिवट बन गया 1, इसके ऊपर बनाना है 0। सो व्हाट यू डू, मल्टीप्लाई द पिवट रो बाय 1 बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से एंड ऐड कर देते हैं ऊपर।
सो 1/3 इंटू 0 प्लस 0, दिस इज 0, ये 2/3 माइनस 2/3, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को, माइनस 1/3 से और इसमें ऐड करते हैं, सो ये 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -2/3 प्लस 2/3 इज 0, दिस वुड रिमेन 1, -1/3 प्लस 1/3 0 बना दिया, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -1/3 इंटू -3 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, -1/3 प्लस 13/3 दैट इज 12/3 इज 4, अभी यहाँ भी 0 चाहिए, ये पहले से ही 0 है तो कोई चेंज नहीं करते, दिस इज 1 1 0 6, यहाँ 0 चाहिए, तो क्या करा फिर से -1/3 से मल्टीप्लाई किया इस रो को और इस रो में ऐड कर दिया, सो द फर्स्ट वैल्यू इज स्टिल 1, यहाँ पे आ जाएगा -2/3 -1/3 -3/3, सो -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/3 -2/3 -3/3 इज -1, -1/3 इज 1, यहाँ पे 1, -1/3 प्लस 1/3 इज 0, zj minus cj should remain optimal, x1 का कोएफिशिएंट इज in the objective -1, s2 is a slack, so 0, x3 का कोएफिशिएंट इज 4, ये 4 और ये 0, so zj minus cj x1 का 0 क्योंकि वो बेसिक है, x3 का 0, s1 का 0 एंड s2 का 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 माइनस -2 इज 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 4 इज 3, एंड तो दिस इज एन ऑप्टिमल टेबल, ऑप्टिमल टेबल अभी भी है, पहले भी था, ऑप्टिमैलिटी तो जाता नहीं है, feasibility आ गई है, क्यों? क्योंकि everything is now an integer. So what is the current z value? The z value is 16. So the all integer solution is x1 equals to 0, s2 equals to 6, x3 equals to 4, s1 equals to 1. And what is x2? x2 is non-basic और वो भी कितना है 0. So everything is an integer, and especially this is a degenerate integer optima. So this is how you do. Let us say, for example, by chance, hypothetically, यहाँ पर होता 11/3, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ इसमें, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर होता ये वैल्यू, तो फिर चेंज क्या होता, तो फिर यहाँ पे चेंज होता, और चेंज क्या होता, 11/3 का नेगेटिव करके नहीं लिख देना है, बिकॉज 11/3 इज नॉट अ फ्रैक्शन, 11/3 में कुछ इंटेजर भी है, उसके बाद फ्रैक्शन है, तो 11/3 में कितना फ्रैक्शन है, इंटेजर है 3 प्लस 2/3, सो 2/3 इज द पॉजिटिव फ्रैक्शन, उसका नेगेटिव करके लिखना होता, तो यहाँ पे लिखा जाता -2/3, इफ दिस वॉज 11/4 और लेट्स से -11/4, तो -11/4 का उठा के आप यहाँ पे नहीं लिखते माइनस ऑफ -11/4, कैसे लिखा जाता, -11/4 में थोड़ा पोर्शन इंटीजर का पहले से ही है, बिकॉज -1/4 का कितना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, -11/4 इज व्हाट -2 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जाएगा -3, -3 में आप क्या ऐड करो कि आंसर आ जाए -11/4, तो -12 1, तो 1/4 वुड हैव बीन द पॉजिटिव फ्रैक्शन, इसका नेगेटिव करते तो आता है यहाँ पे -1/4, तो एक्सट्रैक्ट क्या करना होता है, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट, सो दैट इज द पॉइंट, सो जस्ट मेक इट अनडू कर देता हूँ उसको मैं, so now I'll just see some examples to make cuts and not solve. So see, to solve the same problem, we solved the problem using this x2 row as the source row and proceeded to get the answer in 2 iterations, एक लगा ये और दूसरे में आंसर आ गया. If you had proceeded with this row as the source row, this also could be chosen as a source row, क्योंकि x1 भी नहीं बन पाया अभी इंटीजर, तो यानी एक कट लगाना पड़ेगा, यानी एक रो आएगी और एक कॉलम आएगा, तो मैंने क्या करा, रो और कॉलम तो आने वाला है, तो आइडेंटिटी का कॉलम बनेगा, वो बेसिक बनेगा, बट कट देखते हैं क्या बनेगा, देखो इस रो को डेजिग्नेट करना है सोर्स रो, सो व्हाट यू डू, दिस इज एन इंटीजर, तो 0 यहाँ पे आने वाला है, दिस इज एन इंटीजर, तो यहाँ भी क्या आने वाला है 0, दिस इज -1/22, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस करके इसका पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो माइनस करके 21/22, हाउ, क्योंकि -1/22 का क्या ब्रेकअप है, इट इज -1 प्लस 21/22, so that gives it
द कट। ये प्लस 21/22 इसी को नेगेटिव में लिखा। अब आते हैं इस पे, दिस इज 3/22, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो बस इसी का नेगेटिव लिख देना है, -3/22। राइट हैंड साइड पे 9/2 का फ्रैक्शन इज हाफ, हाफ का, सो द मेकिंग ऑफ दिस कट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लिख दिया, इससे कट बना दिया, एंड इफ यू मेक दिस कट एंड इफ यू प्रोसीड यू गेट दिस टेबल बाय अप्लाइंग द डुअल सिंबल, दिस वुड लीव एंड दिस वुड एंटर। ये मॉड के साथ है, यहाँ पे ये मॉड के साथ है, ये नहीं, ये तो ऑप्टिमल टेबल तो है ही, ये मॉड के साथ इज द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दीस टू, दिस वुड एंटर, दिस बिकम्स अ पिवट, इसे 1 बना दिया, ऊपर सब 0 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल चेंज, वैल्यूज चेंज एंड द राइट हैंड साइड चेंज। सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज x1 की रो को जब सोर्स रो बनाया तो क्यों बनाया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटीजर नहीं था, और होप क्या करी थी कि जैसे ही आप कट लगाओगे x1 का वैल्यू बन जाएगा इंटीजर, जो कि नहीं बना। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। It is not a rule that when you make a cut for a corresponding basic variable, in the subsequent iteration you will always get an integer. जैसे यहाँ पे हुआ था, हमने x2 की रो से कट बनाया तो x2 क्या बन गया, फॉरन 3.5 से एक इंटीजर 3, बट यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है, हमने x1 की रो से बनाया वो कट, तो 4.5 से वो क्या बन पाया, इट इज 95/21 which is still not an integer. So this can also happen. अब आते हैं फिर से, अब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, क्योंकि ये नहीं बन पाए तीनों के तीनों इंटीजर, हमें तीनों चाहिए इंटीजर अब तो, क्योंकि एवरी बेसिक वेरिएबल शुड बी एन इंटीजर। तो नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस, आइदर चूज द x2 रो टू मेक द कट, और x1 रो, और s1 रो। ह्यूरिस्टिक जैसे मैंने पहले आपको बताया, उस रो को चूज कर लो कट बनाने के लिए जिस रो का बेसिक वेरिएबल का वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा है। जैसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, इट इज 0.33 एंड 95/20, ये 95/21 इज ये 4, so you get 84, this is 1, this is 1, so this is 4.5, this is 105, this is 5, this is 50, so this is 2, so this is around 0.52 and this is, ये भी यहाँ से भी कुछ फ्रैक्शन डेसिमल पार्ट आएगा, फ्रैक्शन पार्ट। अब ऑप्शन क्या है, ये S1 है स्लैग, इसे बनाना तो है ही इंटीजर, बट फोकस ऑन योर डिसीजन वेरिएबल्स फर्स्ट, इनमें से कट बनाने का पहले सोचा करो। इसको लेके बनाओगे कट तो भी आंसर आएगा अगर आप सही जाओगे तो, बट फोकस ह्यूरिस्टिक ये भी बोलता है कि सबसे पहले तो फ्रैक्शन पार्ट ही चूज कर लो, जिसका बड़ा है उसी से कट बना लो। नाउ व्हेन यू हैव ऑप्शंस बिटवीन द डिसीजन वेरिएबल्स एंड द स्लैक वेरिएबल, चूज द रो फॉर द डिसीजन वेरिएबल्स फर्स्ट। तो किससे कट बना लेंगे, लगता तो है कि इससे बनाना चाहिए, 95/21 का जो भी फ्रैक्शन पार्ट है दैट इज 0.52, तो इससे कट बनाना चाहिए। बट हम ऑप्शन देख लेते हैं, तीनों से अगर कट बनाना होता तो हम कैसे बनाते। लेट्स से मैं कट बनाता x2 की रो को देख के, इस रो को देख के मैं कट बनाता, तो एक वेरिएबल आता s4 स्लैक, यहाँ पे इसके कॉलम में एक 1 होता, बाकी जगह 0 होते। अब आते हैं कट बनाते हैं, तो अगर मैं x2 की रो से कट बनाऊं तो ये इंटीजर 0, तो यहाँ पे 0, ये एक इंटीजर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं। 1/3 का यहाँ पे आएगा क्या, -1/3, पॉजिटिव फ्रैक्शन का नेगेटिव लेना है, एंड राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 10/3 का फ्रैक्शन इज 1/3, तो -1/3। So if you see this cut is a relatively simpler cut, तो one can also make this cut and proceed। जो कट सिंपल हो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन शायद आगे चल के थोड़ी आसान हो जाए, तो वो कट भी आप चुन सकते हो। तो चलो ये कट हो गया, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये तो हो गया कट फॉर यूजिंग दी x2 रो। नाउ लेट्स से हम x1 की रो से कट बनाते, तो क्या कट बनता, s4 आता बेसिक वेरिएबल, ये 0 होता, यहाँ पे एक 1 होता, इंटीजर है 1, यहाँ पे आएगा 0, ये 0 इंटीजर, यहाँ पे आएगा 0, 0, 0, 1/7 से -1/7, -1/21 से कितना आएगा वैल्यू, -1/21 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज -1 प्लस 20/21, सो द पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट इज 20/21, इसका लिखना है नेगेटिव, सो -20/21। राइट हैंड साइड पे कितना आएगा, 95/21, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना है 4, यहाँ पे 21, तो 84/11,
So that is 11. So minus 11 by 21. So this is the cut. इसको कॉपी करके if we had chosen this row, इस रो में अलग है S4 0, ये 0 इंटीजर है तो 0, ये इंटीजर है तो 0, 1 इज एन इंटीजर 0, 1/7 इज अ फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन खुद ही है ये, तो माइनस 1/7। अब यहाँ पे आते हैं -22/21 में थोड़ा पार्ट तो इंटीजर भी है क्योंकि दिस इज मोर देन 1, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड कम से कम मोर देन 1 ही है। तो कैसे ब्रेकअप किया, नॉर्मल करते हैं ब्रेकअप। -22/21 का व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, इट इज -2। -2 में आप क्या जोड़ दो कि आंसर आ जाए -22/21। सो दिस मल्टीप्लीकेशन इज -42, -42 प्लस 20 कर दो। सो दिस इज द पॉजिटिव फ्रैक्शन दैट यू हैव, इसी का नेगेटिव लिखना है -20/20, यहाँ पे खुद का एक 1 और राइट हैंड साइड पे क्या है इसके 11/21। सो जस्ट राइट -11/21, यानी कि इंटीजर पार्ट से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं आता कट में, क्योंकि -22/21 में थोड़ा बहुत तो इंटीजर भी था, वो कितना था -2, उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन सिर्फ फ्रैक्शन में ही आएगा। 20/21 वाज अ फ्रैक्शन, उसका नेगेटिव लिख दिया। जैसे 95/21 में जो भी पार्ट इंटीजर था 4, उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा कट में, सिर्फ 11/21 जो कि फ्रैक्शन है उससे कट में कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कि आप माइनस करके लिखोगे। तो दीज आर दी 3 पॉसिबल कट्स, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब बात है कि कौन सा कट यूज करें, क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं। तो दिस वाज फॉर S1 रो, ये इससे बनाया, तो इसको तो यूज नहीं करो। कौन सा यूज करो, इन दोनों में से कोई एक यूज करो, जो सिंपल लगे वो भी यूज कर सकते हो। जैसे ये सिंपल है, इसको यूज करोगे तो शायद आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। बट अगर आप इसको देख के चलते कि किसका फ्रैक्शन पार्ट ज्यादा है, तो आपको कौन सा कट यूज करने को बोलते, X1 वाला रो। तो इट्स योर चॉइस, आपको सिंपल चाहिए कैलकुलेशन तो ये वाला कट यूज कर लो, थोड़ी सी टीडियस चाहिए तो ये वाला यूज कर लो। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट, एवरी बेसिक वेरिएबल शुड बी एन इंटीजर। तो मैं लिख देता हूं, यूज द कट और डेजिग्नेट द सोर्स रो टू बी द रो फॉर विच the basic variable has a larger fractional, ये तो पहली चीज है, और use a cut that seems simpler to implement. So these are the 2 points, जो भी आपको सही लगे आप उससे कट बना सकते हो। Last point, the source row for slacks should be the last option. So whenever you write these cuts, also make it a point to write these cuts in terms of inequalities also. For instance, these were the cuts. So what is the inequalities for them? See, if this is the cut, let's say you take the first cut. So first of all, see how many variables are there. You have x1, this is for x1, the first column is for x1, the second for x2, third for s1, then s2, then s3, और ये s4 का खुद का. So what is the simple constraint for the first equation? If you see, only s3 has a component and that is -1/3. So -1/3 s3 is less than or equal to -1/3, which in standard form is what you have incorporated in your table, plus S4 is equal to -1/3.
So this is the cut. So this first part is the actual cut. This second part is how you put this cut in your table by adding a slack and then उस इक्वेशन को डाल देते हो आप अंदर. सेकंड के लिए अगर आप लिखते तो सेकंड के लिए कौन कौन से कोएफिशिएंट है, S2 का कोएफिशिएंट आएगा और S3 का आएगा और ये राइट हैंड साइड आएगा. तो व्हाट इज द सेकंड कट? -1/7 S2 -20/21 S3 less than or equal to -11/21. This is the cut. Now how do you put it in your table? This implies to put it in the table you do -S2/7 -20/21 into S3 plus S4 is equal to -11/21. So this is your second cut. The first part, which is the inequality part, is the actual cut till there, and now this portion is to make your cut move into the table. Similarly for the third, what is the third cut? For the third cut you have these variables: -1/7 into S2 -20/21 into S3 less than or equal to minus this. So basically these, the second and the third, are the same cuts. So -1/7 into S2 -20/21 into S3 is less than or equal to -11/21. So this gives you -S2/7 -20/21 S3 plus S4 is equal to -11/21. So this is your third cut in terms of inequality also, and in terms of this is the inequality, this is the actual cut, and this is how you put it in your table. So whenever you make the cut, always do write this also.